welcome Dr. Manish Saxena, Dean DMA Media School, Dr. Sushmita Wala, Head DMA Media School for this session. Today's topic for this session is financial embezzlements and fugitive scammers. We selected this topic because there is an ongoing issue of one of the fraudulence, financial fraudulence, Mehul Choksi, and there has been an update recently that the Interpol has withdrawn the red corner notice against him. So we will be discussing further on this. In this session, we will get some insights from sir, and of course we can have a question answers later on and any issues related to it, wherein we will discuss the whole scam related scammers. So sir, please if you can enlighten us with these aspects of the issue. In media education, both at the end of the teachers and the students, one common thing has to be there, one-liner has to be there. That in media education, a teacher has to be well versed with whatever is happening around. He has to be updated, whichever subject he or she might be teaching, irrespective of that. Same applies to students. If you don't understand your country, your political system, your economic system, your issues, your problems, then obviously we are preparing a student to take positions in media industry, and they will be completely blank when they will be joining the industry if we are not talking about these issues, and as teachers if we are not sensitizing them to understand as to what all these things about. And in today's time, particularly if I refer to journalism, two things are very, very important for a budding professional. One, he must know the legal side of every development, every story which is being written. कुछ भी हो रहा हो उसको लीगल साइड समझ में आनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोरीज ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और फ्रॉम द हाई कोर्ट. चाहे वो गवर्नमेंट किसी इशू को लेके गई हो, कोई PIL हुआ हो, सारी स्टोरी वहाँ से निकलती. दूसरी, every story originates from the economic affairs as to what is happening on the economic side, whether it's GST, whether it's this ED. I mean, what for ED is there? In the class today, students were asking, कि sir ये ED CBI दोनों क्यों लगाते हैं? Then I explained कि what is the role of the ED. Again, the financial regulation aspect comes into the picture. And then Amritpal ka, yesterday in the class, students were asking about the Amritpal thing. Then I explained what is this economic part of the whole issue. कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन सा कंट्री पैसा दे रहा है, उसके किस साइड के पास कितना पैसा आया, वो कहाँ से आया, कैसे वो फेरा का वायलेशन हुआ, कैसे ईडी का ये एरिया बनता है जहाँ पे अनरेगुलेटेड मनी आपके अकाउंट में विदेश से आ रहा है. तो these are the important things which must be understood. Now, since I asked Piyusha what could be the latest thing on which we can talk about, then she suggested this. I agreed for the reason because it's not the question of only Mehul Choksi. Mehul Choksi के साथ नीरव मोदी भी involved है, but इस तरह के लगातार केसेस हैं. हम चाहे ललित मोदी का केस उठा लें, चाहे हम इवन बहुत पीछे जाए हर्षद मेहता का केस ले लें, और चाहे ये जो किंगफिशर वाला विजय माल्या का केस ले लें. ये सारे अब एक लंबी लिस्ट है पिछले 10 साल से जो यहाँ फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट करके लोग भाग जाते हैं. और यहाँ कोई छोटा सा ऑफेंडर होता है, आपने अपनी मकान और गाड़ी के लिए लोन लिया और आपने नहीं वापस किया तो गाड़ी उठा ली जाएगी, मकान बैंक आपका कब्जा कर जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी. लेकिन जो करोड़ों रुपए, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस का एम्बेजलमेंट करके लोग आसानी से निकल जाते हैं. तो पहली जो इसमें अब इशू क्या है, एकेडमिक इशूज़ क्या है इसमें. पहला एकेडमिक इशू है कि हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दीज इंस्टीट्यूशंस हैव, व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेशंस आर देयर, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द होल थिंग. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द होल इशू ऑफ NPS, why the loans go bad, why the people do not return the money that they have taken from the bank, how did they manage to flee away from the country. Once they flee away, why it is so difficult to bring them back. What are the legal issues involved in this?
whether there is some extradition treaty which has to be there when somebody has to be, some fugitive has to be brought back to the country, and again the legal system. Why most of the people who have fled away, they manage not to return back to India even after 10 years, even after 20 years. So what is those kind of legal systems in India and outside? What kind of international treaties and relations are there between India and the other countries, because of which the government of India is not able to bring somebody back. And then if this happens, what is the role, like in this case Interpol's role is there, what is the role of the Interpol? What is the role of any other country which decides to give citizenship to such a person, and how citizenships could be acquired in a foreign country, and what stops government of India to take action? What is the role of the international community in this? These are important questions which arise from this kind of example. So Mehul Choksi's case is simply a backdrop. इसीलिए जो topic मैंने बनाया वो backdrop है. उसके बहाने we are trying to understand all these issues which are very, very important for us to understand. Right? So I would like that instead of lecturing, because I wanted to have this kind of session which is more interactive, and that is how I asked Piyusha to prepare a note which can be circulated in advance to everybody, so that everybody has an idea as to on what discussion is happening and what could be the possible queries coming from everybody. If that happens, that will be the real benefit of this kind of exercise. So this has become a pattern now, this kind of taking money and paying away. So why the bank is like keep on repeating this kind of mistakes, and Same mistake. even the government. Government. Because in all the scams, one thing which was common was those LOU, which is the letter of undertaking, those fraud letters. Almost every scam has this common link in between. Why it's there, they're not learning from that. There are several answers to this. One, whenever any businessman, any big businessman, any industrialist applies for loan from a bank, they have to complete a lot of paperwork. Now, if you have 10 businesses and your net worth is 10,000 crore rupees, and you apply and you want to set up new business, new factory, and you ask for 1,000 crore loan, any bank will give you the loan happily because your net worth is big and you already have been running 10 different businesses successfully for long. So less number of questions will be asked by the banks. Banks are interested only one thing: whether you are a person who is capable of returning their loans. तो आपके पास तो 10,000 करोड़ रुपए, तो कोई भी बैंक आपको आसानी से लोन देगा. ठीक है, दिस इज वन. टू, जब भी बैंक लोन देता है तो उसको कोई कोलेटरल होना चाहिए. तो उसके पास तो 10 फैक्ट्री हैं, वो उनके किसी एक फैक्ट्री के पेपर जमा कर देगा कि उसके अगेंस्ट में उसको नई फैक्ट्री के लिए लोन मिल जाएगा. तो बैंक्स को लोन ना देने का कोई रीज़न नहीं होता, पहली चीज़. सेकेंडली, नंबर ऑफ टाइम दिस हैपन्स, लाइक जैसे कि विजय माल्या का केस, ये होता है कि उसका एक बिजनेस फेल हो गया, अब वो दूसरे के लिए लोन लेने गया. उस बैंक को पता है कि इसका एक बिजनेस फेल हो चुका है, तो वो प्रिकॉशंस रखता है, वो लोन नहीं देता. अब अगर एक बैंक लोन नहीं दे रहा है तो जो कॉम्पिटिटिव बैंक है वो लोन दे देगा, वो रिस्क लेगा. ये किसी भी बैंक की जो रिस्क एपिटाइट है वो अलग अलग होती है, हर बैंक की अलग अलग होती है. ए बैंक की रिस्क एपिटाइट कम होगी क्योंकि वो हो सकता है पहले से बैड लोन से काफ़ी हाथ जला चुका हो, वो कॉशियस हो कि मैं नहीं दूंगा. दूसरा कोई बैंक होगा, उसकी बैड लोन की स्थिति इतनी ख़राब नहीं होगी, वो चांस ले लेगा, चलो दे देते. तो इसलिए एक से नहीं मिलेगा, दूसरे बैंक से लोन मिल जाएगा. नाउ अनदर केस कुड बी जहाँ पर कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा,
बट देन यू आर एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आप इतने समय से बिजनेस में हैं, आपके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, देन यू यूज योर पॉलिटिकल पुल। तो जैसे विजय माल्या के केस में हुआ, उन्होंने पॉलिटिकल पुल उस समय के गवर्नमेंट ऑफ द डे का इस्तेमाल किया। एक और रीज़न होता है बैंक क्यों लोन देते हैं आपको। बैंक ने सपोज किसी बिजनेसमैन को 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया, उसका वो 1000 करोड़ रुपए उस आदमी ने डुबा दिया, फैक्ट्री बंद हो गई। कभी कभी जेन्युइन भी होता है, कभी कभी डेलिबरेट भी होता है, दोनों पॉसिबिलिटी। जेन्युइन कैसे होता है, सपोज किसी बिजनेसमैन ने 1000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया और वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कोरोना आ गया बीच में और उसकी उस प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई। अब वो क्या करेगा, तो उसको फैक्ट्री बंद करनी पड़ी साल भर। तो हो गया मशीन, जैसे ही फैक्ट्री बंद हुई मशीनों की कीमत का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, सारे एम्प्लॉइज बाहर हो गए, तो वो फिर नए सिरे से नई फैक्ट्री लगाएगा। तो आगे ये तो जेन्युइन रीजन है, बैंक को पता है ये नहीं दे सकता, सही में इसका बिजनेस फेल हो गया। बिजनेस फेल होते भी हैं, तो एक होता है कि फेल नहीं हुआ, उसने फंड डाइवर्ट कर दिए कहीं और यहाँ दिखा दिया कि फेल हो गया। दोनों चीजें होती हैं। अब कोई भी केस हो, बैंक को पता है कि मेरा 1000 करोड़ तो गया, अब वो बिजनेसमैन 2 साल बाद पहुंचता है कि भाई ये तो मेरा फेल हो गया बिजनेस, अब मुझे 1000 करोड़ रुपए और चाहिए, या तो मैं इसको रिवाइव कर दूं तो उसके लिए पैसा चाहिए, या मैं दूसरी फैक्ट्री खड़ी करता हूँ, कोई नया प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में है वो मैं बनाता हूँ, तो मैं आपका ये वाला भी दे दूंगा और पिछला वाला भी वापस कर दूंगा, ठीक है। ये इट्स परफेक्टली लीगल, ये प्रेस्क्राइब्ड है बैंकिंग सिस्टम में। दिस इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन हो जाएगा, बैंक देगी। अब बैंक के पास एक दो चीज़ों में चूज करना है, या तो 1000 करोड़ रुपए जो उसका डूबा भूल जाए बैंक, या कहे कि 1000 करोड़ और देते हैं, दोनों पिछला भी वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा। तो बैंक्स चांस लेती हैं। क्यों लेती हैं? क्योंकि उनका धंधा ही वही, बैंक का बिजनेस ही है लोन देना, क्योंकि बैंक अगर लोन नहीं देगी तो कमाएगी कहाँ से, तो उनका बिजनेस है, इसलिए वो चांस लेते हैं, देते हैं। बस बैंक किस आधार पर तय करती है, अगर आप जेन्युइन तरीके से सोचें तो बैंक इस आधार पर तय करती है कि उनकी बुक्स में एनपीएस कितने हैं। एनपीएस आप समझते हैं ना, कितने एनपीएस हैं, कितने मतलब टोटल जो उनका बैलेंस शीट है उसका 5% एनपीएस है, 10% एनपीएस है, उसकी लाइट में तय करेगी। अगर किसी बैंक के 5% एनपीएस है वो चांस ले लेगी, चलो दे देते। किसी के 20% ऑलरेडी चल रहा है, वो कभी नहीं देगी कि यार 20% पे तो वैसे ही खड़े हैं, पता लगा और 25% हो जाएगा। तो ये वेरी करता है, फाइनेंशियल रीजंस भी होते हैं, लीगल रीजंस भी होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, तो इसलिए लोन मिलता जाता है, ठीक है। अब उसका जब लोन मिल गया, अच्छा बैड लोन्स क्यों होते हैं, जैसे बताया, अब बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो इरादतन डिफॉल्टर होते हैं, जानबूझ के डिफॉल्टर होते हैं। उन्हें पता है कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी सरकार उनको डूबने नहीं देगी। उस बिजनेस से अडानी का होगा, चिंता सरकार को होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर एक अडानी डूबा तो पता लगा कि 10,000 लोगों की नौकरी गई, तो सरकार कभी डूबने नहीं देगी। उसके अलावा एक अडानी डूबा, अडानी इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आगे एक अडानी डूबा तो इंडिया का बहुत सारा जो एक्सपोर्ट है वो हिट हो जाएगा, तो उससे भारत सरकार को ही नुकसान है। एक्सपोर्ट जैसे ही गया आपका डॉलर कम आएगा आपके पास, तो सरकारें बचाती हैं, हर सरकार बचाती है ऐसे बिजनेसमैन को। लेकिन अब जो सरकार हो, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की, उनको तय करना होगा किस हद तक बचाएंगे। तो ब्लाइंडली बचाते हैं, तो बचाते हैं, उसकी वजह से लोग आसानी से फ्रॉड करते हैं और ये सोचते हैं कि उनका तो कुछ बिगड़ना ही नहीं। अडानी ने कब सोचा था कि उनका कुछ बिगड़ेगा है? उसने क्या नाम, विजय माल्या ने कब सोचा था? उसका तो सितारा बुलंद था कि मैं फंसूंगा कभी जाके। तो इसलिए इन सारे रीजन से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सर ये कौन सा मैकेनिज्म होता है कि इनको पहले ही पता लग जाता है कि इनके अगेंस्ट केस होने वाला है, एंड एग्जैक्टली तीनों केसेस में वो बिल्कुल टाइम लाइन से पहले यहाँ से फ्लैट करके और पहले अपना इंतजाम इसका फ्रॉड करने के बाद भी अच्छा नहीं, देखो ये जो सिस्टम है हमारे देश में और ज़्यादातर देशों में कि हम सब ज़्यादातर देश देते फॉलो द कैपिटलिस्ट सिस्टम,
कैपिटलिस्ट सिस्टम में मेरे ख्याल में एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, कैपिटलिस्ट सिस्टम में द गवर्नमेंट हैज़ वेरी लिमिटेड रोल टू प्ले. गवर्नमेंट्स रोल ये थोड़ा बहुत ही एकेडमिक थिंग चीज़ है जो सबको समझनी चाहिए. गवर्नमेंट रोल इज कन्फाइंड टू पॉलिसी मेकिंग, टू लॉ मेकिंग and to execute those policies, keeping in mind that the businessman gets all possible opportunities to set up their business and to grow, thereby generating employment, thereby contributing to the economy of the country through enhanced taxation and through more exports, helping the country to get more dollars and having a better situation as far as foreign reservoir is concerned. तो इसलिए there is a nexus. अभी कुछ हद तक तो acceptable है, capitalism happens like that. और ये the process which started post 1991 economic liberalization, जहाँ पे था कि गवर्नमेंट के रोल को मिनिमम करने की कोशिश की गई. तो 91 से for about 10-12 years जिसमें कांग्रेस की सरकार भी थी, थर्ड फ्रंट की सरकार भी थी और अटल बिहारी की सरकार भी थी, करीब करीब 10 to 15 years लगे इस पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज होने में इस पूरे सिस्टम को. उसके बाद 2004-5 के ऑनवर्ड्स, जिसमें 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार, 8 साल इनकी सरकार, ये जो सिस्टम बना इसमें all the efforts have been done to reduce the role of the government as little as possible. Government का रोल बहुत कम कर दिया. So everything is in the hands of the private sector, right? तो ये सोची समझी पॉलिसी है जिसपे देश चल रहा है और इसमें कोई पार्टी से फर्क नहीं है. कांग्रेस, बीजेपी, the same economic policies are being followed. हो सकता है कभी कभी पॉलिटिकल रीजन से एक की पॉलिसी का दूसरा विरोध करे, बट देन एक्सेप्टेंस है कि यही पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है. अब इस पॉलिसी में क्या होता है कि डेवलपमेंट का पेस फास्ट हो जाता है, पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो, क्योंकि जब अडानी अंबानी ग्रो करेंगे तो जिसने अडानी के शेयर लिए हुए हैं वो भी ग्रो करेगा, और जब अडानी का शेयर डूबेगा, जो अभी मार्केट मंत्रा में मैं उस दिन देख रहा था, कई जो क्वेश्चन पूछने वाले थे लिसनर तो रो रहे थे कि हमारा 1000 रुपये का शेयर 18 रुपये पे आ गया, हम क्या करें. ठीक है, तो क्या होता है, तो जब अडानी ग्रो कर रहे हैं तो हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमारा भी पैसा बढ़ रहा है, तो इसलिए सब लोग उस खेल में शामिल हैं, सब बड़े खुश भी होते हैं उस खेल में शामिल होकर, तब तक जब तक कि नुकसान नहीं होता. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, तो जो ये कैपिटलिज्म है, जो सबसे अगली फॉर्म है कैपिटलिज्म का, दैट वी कॉल एज क्रोनी कैपिटलिज्म, जहाँ पर बहुत ही क्लियर कट ओपन नेक्सस होता है बिटवीन द पॉलिटिकल मास्टर्स, द ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेस. What is the term? क्रोनी कैपिटलिज्म. Crony. ठीक है, तो ये नेक्सस है. और जो निकलने की बात है, इनको बिजनेसमैन को तो पता ही होता है उसने कहाँ गड़बड़ की है. जब जिस पॉइंट पे उसे लगता है कि मैं फंसूंगा वो निकल जाएगा, या जो उसका पॉलिटिकल मास्टर है वो उसको इशारा कर देगा कि अब निकल लो, मैं बचा नहीं पाऊंगा, निकल लेगा वो टाइम से तैयारी कर लेगा, निकल जाएगा. बिना प्रोटेक्शन के नहीं निकल सकते, संभव नहीं. सर मेरा एक इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है. 2 केसेस आपको शायद पता होंगे. पहला, जब टाटा ने रॉयल्स रॉय को जब ग्रैब किया था तो काफी बड़ा अमाउंट टाटा को देना पड़ा था, तो उसमें गवर्नमेंट के इन्वॉल्व, पी चिदम्बरम उस वक्त शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो एक रोल है कि गवर्नमेंट चाह के भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सपोर्ट करती है. अगर ऐसे केस, और दूसरा केस आया था सहारा श्री का. सहारा श्री का बिजनेस अलग था, पैसा कोई गलत नहीं था, लेकिन वो सेबी ने उसको पूछ लिया कि तुम जो लिस्ट बोल रहे हो वो लिस्ट लेके आओ. लिस्ट तो कोई थे नहीं, सारे फ्रॉड थे. तो जब इस तरीके की जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, कि जैसे कि मान लीजिए टाटा वाला तो क्लियर था, उन्होंने सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने, अगर मेहुल की तरह या नीरव मोदी की तरह वो भी चले जाते तो इसमें तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ जाती है. कभी कभी, तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभी गवर्नमेंट को बचा, जो आपने बात भी रखी कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इनको सेव किया जाए. और इसी तरीके से सहारा श्री वाले में इतने लोगों का पैसा लगा था, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं था वहां. पैसा तो वो तो चिट फंड था, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया था, काफी सपोर्ट भी किया. नहीं, इसका दूसरा आंसर है. इसका आंसर ये है कि हमारे देश में 2 तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. ठीक है, एक तो बैंकिंग है, बैंकिंग में भी कई कैटेगरी की बैंकिंग है.
ठीक है। एक जो हमारी कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो लोन देती हैं उस तरह की बैंक हैं, या जो अब नई आ गई हैं पेमेंट बैंक्स हैं, तरह तरह की बैंक्स हैं हमारे। तो एक तो ये इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरी तरफ हमारी जो तुमने कहा चिट फंड कंपनीज हैं, जो जिनको हम कहते हैं स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो बहुत वीक है, आज भी वीक है, 1980 में भी वीक था, 2023 में भी वीक है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत वीक है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म वीक का मतलब हुआ कि वो पैसा कलेक्ट कर लेते हैं और कोई नियम उनके ऊपर लागू नहीं हो पाता। तो जब नियम लागू नहीं हो पाता तो सरकार कुछ कर ही नहीं पाती उनको। तो वो सहारा चिट फंड से लेके शारदा तक लेटेस्ट सेम स्कैम, ये वाला जो स्कैम है जो भी हम बात कर रहे हैं मेहुल चौकसी वाला, और जो इसका विजय माल्या वाला, ये अलग तरह का है, जो बैंकों को उल्लू बना के जाता है, अलग-अलग और चिट फंड वाला अलग तरह का। लेकिन अब रिसेंटली चिट फंड की नई रेगुलेशन आई है जिसमें आप जितने की चिट फंड होती है उतना पैसा आपको पहले जमा करना नहीं, अब चेंजेस आए हैं, काफी चेंजेस आए हैं। अब सरकार ने काफी चेंजेस लाई है और रजिस्टर्ड कर दिया है। और हाँ, और अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट सरकार ने किया है सेबी एक्ट में, उसके हिसाब से अब चिट फंड कंपनी को सेबी रेगुलेट कर सकते हैं, हाँ जी। पहले नहीं पॉसिबल। और जो सहारा का मामला है, सहारा में एक और तरह का एस्पेक्ट है। सहारा जो था वो बहुत सारे लोगों का ब्लैक मनी था उसमें, ठीक है। तो वो चिट फंड कंपनी के नाम पे तमाम लोगों ने अपने ब्लैक मनी को डंप किया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पैसा दो, लोग मांग रहे हैं। उसने कहा सारा कोई नहीं मांग रहा, कहा नहीं इतने सारे लोग मांग रहे हैं, जितने लोग भी पहुंचे थे तो पूरी लिस्ट दो कितने लोग हैं। तो उन्होंने कहा जब कोई मांगेगा तो हम दे देंगे, क्योंकि कोई मांग तो था, एक्चुअली कोई नहीं मांग रहा था, कोई आदमी था ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मांग रहा है या नहीं मांग रहा है तुम लिस्ट दो हमें। अब लिस्ट तो थी नहीं, वो फर्जी बनाई हुई थी। तो वो कई ट्रकों में भर के सुप्रीम कोर्ट में ले गया कि भैया जांच करवा लो, कितने 10 ट्रक या कितने कागज भर के ले गया था। अब कौन खोजेगा उसमें कागज। तो ये तरह तरह के तरीके हैं। कुछ लोग फंस भी जाते हैं। अब सारा चीज फंस गए बेचारे इतनी कोशिश के बाद भी। सारा क्यों फेल हुआ, 2 रीजन से फेल हुआ, वो भी बता देता हूँ मैं। वो मनस्य बताया वो कुछ एडिशन मॉडिफिकेशन कर रहे, क्योंकि सारा के बर्थ से मैं सारा को जानता हूँ और उनके फाउंडर को जानता हूँ। 2 कारणों से डूबा। एक तो चिट फंड कंपनी भी ऐसे ही डूबती है ज्यादातर, जो सहारा वाली शारदा से लेके सब। आपने पैसा तो इकट्ठा कर लिया, आपने 1000 करोड़ 10,000 करोड़ इकट्ठा कर लिया, फिर जिसने इकट्ठा किया उसको कंपनी को लगता है कि 10,000 करोड़ इज ए बिग अमाउंट, चलो एंजॉय करते हैं लाइफ। तो क्या हुआ कि बोर्ड मीटिंग करेंगे, सबको बढ़िया आप गिफ्ट दे रहे हैं। तो सहारा श्री ने जैसे एक बार ये किया कि इस बार जो बोर्ड मीटिंग है इन एयर में करते हैं, चार्टर्ड बुक कराया, 4 घंटे प्लेन घूमता रहा और ऊपर बोर्ड मीटिंग चलती रही। तो जैसे कि इसका हुआ जेवी जी का हुआ, उन्होंने भी यही किया, ये सारे चिट फंड वालों ने यही किया। असली जो फंसता है कोई भी ये कंपनी फंसती है, कब फंसती है? जब देनदारी आती है। आपने 10 साल के लिए ले लिया ना इन्वेस्टमेंट, 10 साल बाद देना पड़ेगा। 10 साल बाद देना, तब तक एंजॉय करो। तब तक सोचा कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ इंजॉयमेंट में निकालेंगे, कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वो मल्टीप्लाई हुआ नहीं, इंजॉयमेंट में पैसा चला गया। 10 साल बाद लोगों का हमारा पैसा दो, अब पैसा तो है ही नहीं। तो इसलिए सारे लोग फेल हुए। माइक्रो फाइनेंसिंग में सबसे अच्छा काम दुनिया में किसी ने किया है तो बांग्लादेश ने किया। जो लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, वो केस स्टडी है बांग्लादेश। तो सक्सेस स्टोरीज भी हैं आप ईमानदारी से करें तो। लेकिन चूंकि हमारे देश में जो भी आदमी है 90% फ्रॉड से ही काम शुरू करते हैं। नहीं, इट्स अ फैक्ट। तो चूंकि आप दिमाग में ही फ्रॉड से शुरू कर रहे हैं तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। ईमानदारी से करें तो सक्सेस स्टोरी हो सकती है। बहुत सारे इस तरह के उदाहरण है। कोऑपरेटिव बैंक्स शुरू ही करते हैं कि पैसा इधर से उधर हेर फेर करता है। तो जब आप शुरू ही करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट बात, रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंडिया में हमेशा से वीक रहा है। आज पहले से बेहतर हुआ है, बस इतना है कि, लेकिन ठीक अभी भी नहीं है। तो जहां भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म वीक होगा, जैसे छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, जिस समय इंडिया में करेंसी बदली, आपका पैसा कहीं से ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोऑपरेटिव बैंक से करा लो, कराया ना। तो लोग ढूंढ लेते हैं तरीके, और उनके ऊपर नियम लागू नहीं हुआ। कॉमर्शियल बैंक के ऊपर नियम लागू हुआ ना,
कोऑपरेटिव बैंक से बदल लिया, और कोऑपरेटिव बैंक के पास ये वो थी, परमिशन थी कि वो जाके अपना पैसा बदल लें। तो मैंने भी अपना पैसा दे दिया कि यार मेरा भी 10 लाख बदल लेना, वो पूरा पैसा उन्होंने रिजर्व बैंक से जाके बदल लिया। तो आप तरीके हर तरह निकाल लेते, तो हमारे सिस्टम ही उस तरह का हमने बनाया है। लेकिन हाँ, सबके बाद भी एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो मैं अपने से ऐड कर देता हूँ, किसी ने नहीं भी पूछा है तो। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद भी एक जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसने बैंकों को बचा रखा है और इस देश को बचा रखा है, वो है रिजर्व बैंक का रोल। आपका पैसा कहीं नहीं एंड में डूबेगा। नहीं डूबेगा तो फिर भी आप मिल तो बच जाएगा सकते end हैं, में। बच सकते हैं। तो दूसरी कंट्रीज में तो क्या लेकिन सर कुवैत में क्या हुआ, रातों रात सब खत्म हो गया, पानी हो गया, वो तो चले गए बैंक, सब भाग गए वो। नहीं तो सेंट्रल बैंक जहाँ भी वीक होगा, हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक इज द सेंट्रल बैंक, अगर सब जिसको दिक्कत हो वो पूछ लेना। नहीं तो वो जहाँ सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक स्ट्रॉन्ग है। सर जो ऐसे बड़े लोन्स होते हैं स्पेशली, क्या उसमें लुक अप ऑन करती है? सर ने बोला ना कि गवर्नमेंट अपना हाथ खींच रही है। सर ऐसे सेंट्रल लेवल में कोई बॉडी, सेंट्रल लेवल पे सीधा सा है, सच काइंड ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग इन। नहीं रूल क्या है, रूल क्या है, जो रिजर्व बैंक चूंकि रेगुलेटर है एक तरह से, तो रिजर्व बैंक ने जो रूल बनाए हैं, रूल क्या है, कोई भी बैंक अपने जो टोटल एसेट्स हैं उनका एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा लोन नहीं दे सकता, वो शायद 60-65% और समथिंग। तो अब ये एक रेगुलेशन है, तो अगर 60% किसी ने लोन दे दिया और उसमें 10% डूब भी गया, तब भी बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक बच जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, और हर एक बैंक को अपना पूरा अकाउंट, कितना उसने लोन दिया, कितना उसके पास पैसा है, सारा डेटा रिजर्व बैंक के पास देना पड़ता है। और जो उसके पास सरप्लस मनी है, अगर किसी बैंक के पास है जो अनयूटिलाइज्ड है, एक सर्टेन लेवल तक उसको रखना है अपने पास, उसके ऊपर जितना पैसा है, ये मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पाऊंगा, अपने आप पढ़ना, उसके ऊपर जितना पैसा है वो हर बैंक को देना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है कि इतना है, इसके ऊपर रिजर्व बैंक को देना ही है पैसा उसे। तो वो पैसा डूबे, उस बैंक का एक सर्टेन अमाउंट रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा हुआ है। सर एज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कोई सेंट्रल लेवल में ऐसी एक बॉडी या कमेटी नहीं बननी चाहिए जो लुक आफ्टर करे? रिजर्व बैंक है ना। फिर सर फिर भाग कैसे जाते हैं? नहीं, जो बैंक्स तो बड़े इंडिपेंडेंट है, बैंक्स तो इंडिपेंडेंट है। बननी चाहिए ना एज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। उसमें भी उसमें भी अपने लोगों को बिठा ज्यादा कर पाएंगे। नहीं जरूरत, सॉल्यूशन क्या है? नहीं वैसे सवाल इसका बेमानी नहीं है। सर ये हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है और इज इट अ ग्लोबल प्रॉब्लम? It's a problem with most of the capitalist How countries. do they deal with it and how मतलब उनका डीलिंग हमारे डीलिंग से डिफरेंस कैसे है? दो तरह से। पहला, उनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमसे वीक है, इसीलिए 3 बैंक अभी यूएस के डूबे। लेकिन यूएस से हम मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते, अमेरिका या इस तरह का किसी भी देश का एग्जाम्पल लें, तो वो इतने बड़ी इकोनॉमी है कि उनको इसके बाद भी निकाल ले जाते हैं। हमारे पास अगर ऐसा हो जाएगा, जैसे अभी जो कौन सा बैंक डूबा वो सिलिकॉन वैली वाला, वैसा अगर हमारे यहाँ डूब जाएगा तो हमारी तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो वो उनकी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तो बच जाती हैं। सर यूटीआई की बात भी तब भी बेहतर हुआ। बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले स्ट्रीमलाइन कर ली थी। कहाँ? सिलिकॉन वैली बैंक का, तो ऑलरेडी वहाँ पता था का क्या एक बार में नहीं हुआ कि उसका धीरे धीरे वो चल रहा था। और नहीं, वहाँ भी वही हुआ, एक लाइन में है कैसे फंसे वो, जो इंडिया में भी मैंने अभी इतने एग्जाम्पल दिए फंसे, बहुत सिंपल है उसको समझना। उसमें क्या होता है, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक का ही उदाहरण दे देता हूँ मैं। उन्होंने क्या किया, रेगुलेशन तो है नहीं, तो वो जो जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक लगाता है वो सब नहीं है, तो उन्होंने अगर उनके पास 100 रुपये है तो पता लगा 90 रुपये उन्होंने दे दिए लोन, तो उनके पास बैकअप कुछ है नहीं। अब जो उन्होंने लोन दे दिया उस पर क्या करते हैं, अब बैंक क्या करता है, बैंक के पास जो पैसा बचा होता है बैंक उसको बढ़ाता है। हर एक बैंक, इंडिया में हो चाहे अमेरिका हो, कैसे बढ़ाता है, स्टॉक मार्केट में पैसा डालेगा, बॉन्ड्स में पैसा डालेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा डालेगा। जब पैसा बढ़ेगा तभी आपको, पैसा बढ़ना तो बेसिक बात है, हर आदमी अपना पैसे को बढ़ाने की कोशिश, तो पैसा बढ़ाते हैं। हाँ, तो वो लेते हैं। अब वो क्या है, इंडिया में जो है वो नियम है, यही रेगुलेटरी एस्पेक्ट। इंडिया में नियम है
कि रिजर्व बैंक ने नियम बना रखा है कि कोई भी बैंक जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाएगा। सर वो रिजर्व भी तो कुछ अमाउंट रखते हैं। रिजर्व तो अलग हो गया, बाकी जो लगा भी रहा है ओपन मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाएगा तो वो डूबेगा नहीं। सर लेकिन जैसे कुवैत में गवर्नमेंट ही भाग गई, सर इसमें इमिग्रेशन का क्या रोल है? जैसे ये भाग जाते हैं हाँ। तो उधर सब क्या मिलेगा। कोई लोकेशन हाँ, ये छूट रहा था, सही पकड़ के लगा। देखो इसका है, इसकी दो तीन चीजें हैं इसके पीछे। एक तो जब भी कोई देश से भाग किया जाता है, विदेश से बाहर चला गया वीजा लेके है, तो उसके बाद क्या होता है कि दुनिया में जो इंटरनेशनल वो लॉ के हिसाब से एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होनी चाहिए। ये दो कंट्रीज के बीच की ट्रीटी है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यर्पण संधि। ठीक है, प्रत्यर्पण संधि। ठीक है, तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है। ये इसके लिए कोई कॉमन कानून नहीं है, एक देश की दूसरे, मान लीजिए इंडिया की यूके से होगी, इंडिया की जितने देशों से, लेकिन इंटरेस्टिंगली फॉर वट एवर रीजन दैट आई डू नॉट नो, इंटरनेशनल जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हैं वो बहुत कम होती हैं। जैसे इंडिया की एक रफ बता रहा हूँ, बाकी चेक कर लेना गूगल पे। इंडिया की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होगी वो 40-50 देशों से ज़्यादा नहीं। एक तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की समस्या है। अगर कोई भागने वाला ऐसे देश में चला गया जिसके साथ इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो वो तो भूल जाओ, कभी इंडिया ला पाएगा उसे। नदीम उसमें एक एग्जांपल है। तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो सबको पता होता है, जितने ये लोग करते हैं खेल वो ऐसे ही देश में जाएंगे जहाँ इंडिया ला ही नहीं सकता उनको वापस। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत सारे देश, जैसे ये इसी का है एंटीगुआ, ये देश क्या है, तो जरा जरा से जगह आइलैंड्स हैं, इनके यहाँ ये बेच देते हैं, इनके पास पैसा नहीं है। तो अगर कोई गया कि ये 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ डॉलर रखो सिटीजनशिप, तो वो खुशी खुशी रख लेते हैं उसको। तो इसलिए इनको आराम से सेफ हेवन्स मिल जाते हैं। दूसरा जो सवाल तुमने अभी क्या पूछा, यूके और विजय माल्या। हाँ, दूसरा क्या है कि सारे देशों में जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली, वहाँ का लीगल सिस्टम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा प्रो पीपल है। इंडिया का एक अलग एक्सट्रीम है और डेवलप्ड कंट्री का दूसरा एक्सट्रीम है। यहाँ इनोसेंट आदमी को भी अंदर कर देते हैं और वो कभी बाहर नहीं निकल पाता, और वेस्ट में ईमानदार आदमी को आप कभी पकड़ नहीं सकते अगर वो बेईमान हो जाए, क्योंकि वहाँ का लीगल सिस्टम इतना पीपल फ्रेंडली। तो ये सारे लोगों को पता है कि हम कानून से के सहारे बच सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो तर्क है जिसके आधार पे ये आश्चर्यजनक लग सकता है बट ये सत्य है, जहाँ भी मुकदमा चलता है, जैसे विजय माल्या का, ये नीरव मोदी का भी एग्जाम्पल ले लो, इनको जब आना होता है, भारत सरकार लाने की कोशिश करती है तो एक लीगल प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने 4 आदमी भेजे और वहां से उठा लाए उसको, वो कोर्ट के थ्रू जाएगा। तो भारत सरकार को कोर्ट में जाना, यूके के कोर्ट में जाना पड़ेगा और मुकदमा लड़ना पड़ेगा नीरव मोदी को लाने के लिए। इसीलिए तो सर वो डिफेंड कर पाया अपने और आप वो डिफेंड कर लेते हैं एक सबसे बड़े आधार पे, एक सबसे बड़े आधार पे डिफेंड कर लेते हैं। वो ये साबित कर देते हैं कि इंडिया का लीगल सिस्टम बहुत खराब है और हमें गए तो ये हमें इनह्यूमन ट्रीटमेंट देंगे और हमें डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट देंगे, तो हमें मुकदमा यहीं चला लो, इंडिया मत भेजो। और कोर्ट्स मान जाते हैं। इसने पूछा फायदा क्या है, कोई बताएगा क्या फायदा? That is what ना they in fact support these people because नहीं, पैसा सर ये एक रीजन है, क्या? ये कंट्रीज उनको सपोर्ट करती है। इसलिए पैसा है सर पैसा उनके दे रहे पास। हैं ना वो। सिर्फ That is उतना one नहीं है, prominent reason. नहीं सिर्फ इतना नहीं है। ये थोड़ा सा कोशिश करके समझना पड़ेगा जो इंडिविजुअल फ्रीडम का टोटल कॉन्सेप्ट है और इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में जो सोच है वो इंडिया और किसी भी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री की बिल्कुल अलग है। तो वहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम और इंडिविजुअल डिग्निटी को इस हाइट तक इम्पोर्टेंस दी जाती है कि इसको भेजा और इसको कल को डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट मिला, इसका हैरेसमेंट हुआ तो फिर मत भेजो।
लेकिन सर इंडिया में हम नहीं समझ पाते उस बात को। हाँ। लेकिन सर वो अगर वो है यूके के सिटीजन को अगर वो ये कर रहे हैं तो ठीक है, बट वो यहाँ का सिटीजन है तो उसको प्रोटेक्ट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बेसिक बात समझ लो, पूरी दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी है उनके एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कॉमन है। सर लेकिन एक चीज़ है, आपने कहा कि इंडिविजुअल राइट्स को दावा करते हैं, देन व्हाई यूएस के जो उसके अपने जेल्स हैं इन गिट्टो बे एंड वी विल सी इन क्यूबा, सो हाउ वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल है ना। अबू सलीम के केस में जब लिस्बन कोर्ट ने कहा कि साहब हमारे यहाँ मौत की सजा नहीं है, तो आप मौत की सजा नहीं दे सकते, ठीक है, बहुत हम चाह के भी नहीं नहीं, अच्छा ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बिल्कुल बढ़िया पॉइंट विशाल ने बताया। क्या होता है जो मम्मी भी पूछ रही थी, क्या है कि अगर सपोज किसी को भी हम लेके आ रहे हैं, इंडिया लेके आ रहा है, वहाँ इंग्लैंड के कोर्ट में आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको भेजो, आपने सारा सिद्ध कर दिया। अगर उसने जो विशाल ने कहा यही सिद्ध कर दिया कि ये जो मेरे ऊपर आरोप इंडिया में लगे, इसका मुकदमा चलने पे मुझे एक्सट्रीम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट है, इसी आधार पर नहीं भेजा जाएगा उसको। Who are these people to decide it? यस, Crime यही और सवाल है, यही सवाल है। That's पूरी दुनिया एक है। ये जो तुमने सवाल किया ये इसीलिए मुश्किल से समझ में आता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर द सेम इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, और यूएन के सब सिग्नेटरी हैं, ह्यूमन राइट का सबको पालन करना है। तो वो हम तो सॉवरेनिटी का सवाल है, ये मैं जवाब दे देता हूँ, ये हालांकि आज मुद्दा है नहीं। सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी एक लाइन का की डेफिनेशन है दैट एनी इंडिपेंडेंट कंट्री इज फ्री टू डिसाइड इट्स पॉलिसीज, इट्स कोर्स ऑफ एक्शन, नोबडी कैन डिक्टेट दैट कि ये पॉलिसी बनाओ या ये इस, तो वो हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास पूरी अथॉरिटी है। लेकिन ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हर एक देश जो यूएन का मेंबर है, जो आप ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर हैं, आप रिफ्यूजी कमीशन के मेंबर हैं, तो इस तरह के कम से कम 20 ऑर्गेनाइजेशन के आप सेक्रेटरी हैं, या एटॉमिक एनर्जी वो जो न्यूक्लियर जो है क्या नाम ट्रीटी उसके मेंबर हैं, आप 20 तरह के। आप उदाहरण के लिए ले लो, जैसे कि आप अगर न्यूक्लियर पावर और आपने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन किया हुआ है, तो आप किसी भी देश से यूरेनियम खरीद लीजिए। तो मतलब इस तरह के हैं, तो आप इंडिपेंडेंट होते हुए भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अगर आप उसके मेंबर में नहीं आ रहे हैं, आप तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, बहुत चीज़ों के मेंबर हैं, तो यू हैव टू अबाइड बाय दैट। तो ये सॉवरेनिटी जो है ये बड़ा आई वॉच टाइप का कॉन्सेप्ट है। सॉवरेनिटी किसी के पास नहीं है, सॉवरेनिटी यहाँ तक नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल दे देता हूँ जिस इशू के ऊपर सुमेधा ने अपना राइटअप लिखा था, अपने आप याद करना कब लिखा था। सपोज इंडिया में क्या हुआ कि कुछ राइट विंगर्स हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई, कुछ बवाल हुआ, उसके बाद यूएई ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया कि भाई जिसने ये किया है उसको सजा दो। सर वो वाला जो गैब्रियल बोल दिया था, अरे वो उसका, अरे नुपुर शर्मा, ठीक है, अब कहो कि यूएई कौन होता है हमें बताने वाला कि किसके खिलाफ एक्शन लो मत लो, लेकिन लिया, क्योंकि काम करना है उनके साथ, तो फिर अब फिर कहाँ रह गया? कनेक्शन है। मतलब एक दूसरे कंट्री के कहने से हमारे कंट्री ने रूलिंग पार्टी के एक नेता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, आज भी सस्पेंड है। तो कहाँ की सॉवरेनिटी रह गई? हमें तय करना था ना कि उसने गलत किया, सही किया, सजा देनी है, नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में बैकलैश आ गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन सर सेम केस साउथ अफ्रीका में गुप्ता ब्रदर्स के साथ हुआ, इंडिया के कहने पे उन पे केस नहीं चला, जबकि सबसे बड़ा फ्रॉड किया उन्होंने, जो बड़े सबसे बड़े बिजनेसमैन है, पूरा लैंड लेके शादी की थी होली में। पता है, अब बिल्कुल इंडिया ने बोला देखो इनको हाथ नहीं लगाना, नहीं लगा। मैं सर ये पूछा, जैसे जो बाहर कंट्रीज के जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स हैं आजकल के टाइम पे जो कि कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं, कितने टाइम के लिए आ रहा है, अगर हम कहीं भी किसी और देश में कहीं ये चीज़ जाएंगे, ऐसा हम भी करना चाहेंगे, तो हमें उस देश की जो भी मतलब गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली। हाँ, तो आज के टाइम पे बाहर के देश के जो हैं वो यहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों से, और उस टाइम से पहले ही भाग जाते हैं, तो उस टाइम पे मतलब उसका रीज़न सिर्फ अगेन वही है कि हमारा लॉ, हमारे या किसी भी देश का लॉ, वो सभी देशों पर लागू लॉ उतना मजबूत है नहीं।
हो भी नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में आप कितना भी स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम बना दें, इंटरनेट की कोई बाउंड्रीज नहीं, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम रहेंगी। ये सारे देश ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे जैसे लॉ को और बेटर बनाते हैं, फिर नए तरह के फ्रॉड हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर देश, जो इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें पॉलिसी मेजर क्या लेना है। जैसे सबसे आसान एग्जांपल मैं देता हूँ, सब समझ जाएंगे। जैसे बैटिंग है, आईपीसी के हिसाब से, इंडियन क्रिमिनल लॉ के हिसाब से बैटिंग जो है ये इलीगल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। लेकिन अब गेम्स में बैटिंग अलाउ कर दिया। देखो, कानून तोड़ने के भी आर्ग्यूमेंट्स हैं और कानून को लागू करने के भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। हमारा जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि बैटिंग इज एन इलीगल एक्ट, जिसकी वजह से ही इतने क्रिकेट में बुकीज अरेस्ट हुए, इतने खिलाड़ी अरेस्ट हुए, सारा कुछ हुआ। इलीगल है तो क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए इलीगल है, और बाकी कौन सा वो आता है, ड्रीम 11, हाँ, जो वो MPL। सवाल ये था कि अगर ये लॉ में परमिटेड नहीं है तो कैसे हो रहा है? परमिट किया है, नहीं परमिट किया है, नहीं परमिट किया है। परमिशन करने के लिए आपको आईपीसी में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सरकार की मर्जी से थोड़ी हो जाएगा। पार्लियामेंट में जाके इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट करना होगा। तो फिर टैक्सेशन, उस पे टैक्स कैसे लगा दे? इकोनॉमिकली ऐसे 30% तो फ्लॉ है सिस्टम का, भाई क्या करें उसमें? एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, टैक्स भी लगा। हाँ, यही तो इशू है। तुम क्रिप्टो के बारे में पढ़ लो, एक लाइन का इशू यही है कि एक इलीगल एक्ट को, एक मिनट सुन लो, क्रिप्टो के बारे में पढ़ो कहीं भी तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक इलीगल एक्ट है जिसको भारत सरकार परमिट नहीं करती, लेकिन अगर कोई क्रिप्टो में डील कर रहा है तो उसके मुनाफे पे टैक्स लगाती है। मुनाफा हो ही नहीं। सर, उस पर आर्गुमेंट गवर्नमेंट की ये थी कि हमें पता लगे कि कितना काम चल रहा है। कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, कानून है तो कानून है, कानून बदल दो। हर चीज से कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है। नहीं, यहाँ एक बात समझो, एक चीज समझ लो, उसको सारी बात को एकेडमिक रखो, इसको एक बात समझ लो, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, लेजिस्लेचर का क्या रोल है। कोई भी एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम को अथोराइज नहीं कर सकती जो लीगली पार्लियामेंट ने परमिट नहीं किया है। तो पार्लियामेंट ने आईपीसी में कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। बैटिंग इज एन क्रिमिनल एक्ट। ये हम इसे गेम कंसीडर कर रहे हैं, बेटिंग से साइड डेफिनेशन ही चेंज करने की एक्ट वाइज यूज कर रहे हैं सर। हाँ, तो ये इस बात का उदाहरण है कि भारत सरकार अपने देश के कानून को किस तरह से दरकिनार करके लोगों को गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए प्रेरित कर रही है। So I hope everybody liked the session, and we actually gained a lot more than what we expected of this session. And I would also request each one of you to come up with some more topics for the later sessions. And yes, sir, thank you so much for this insight and for this new idea. And we hope we continue to do this.